Okay, so last session we have done a review just to understand on the project how we are progressing, and there are more project reviews left. We have to go through it because we could only review 2 projects, and I would suggest that in between also we'll set some time for different project reviews. The purpose is that whatever we learn, how we can apply over there, and just wanted to know on the project side. Just may admit one more person. Okay. So from the last session, we are into graphical analysis, and we have gone through this multivary on the entire interpretations of that. So this is already we have done. We have also understood how we apply box plot, how to interpret the box plot. So box plot interpretation is also clear. And along with the box plot, what is the application of CI plot, which is confidence interval plot or interval plot. So we also talked about the interval plot, how we can apply that, and how it is linked, where to use interval plot, how to use it. Data will be the same, data collection will not vary or it not be different, but the chart will be different, interpretation will be different. Median based or mean based, what we discussed last time. And now we are moving to one more graphical, which is on the scatter plot and the correlation with the scatter plot. So relationship in scatter plot. So that we're going to start today. And then we'll move into the introduction of numerical analysis. Basically, this is just graphical analysis to have some understanding on that. Now we want to move later on, once we complete few more analysis on the graphical analysis, and then we'll move into the numerical one. So before we move to the numerical one, we want to know up to here, are we clear on the application, interpretation? If I want to use multivary, I want to use CI plot, I want to use interval plot, and IMR, X bar R chart plot, normal t-test, this already we have done in the major phase, which can again be used in analysis phase in graphical analysis. So up to this point, any question from your side? Yes. Then we would move into the new tool, scatter plot, and it will have an extension to correlation regression. So it's a very important plot, but I want to move once we are clear what we have done earlier. So please, time for you to ask anything which is not clear as in the last sessions. Yes. Or anything you want to apply in your project, you can ask that, is it applicable in my project, or I'm doing this and I find this tool is applicable. So anything you want to ask on this? So can we move to next tool if there's no question from your side? Yeah. Shall we move to next or? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's move to next graphical understanding, and that is, we call it scatter plot. Okay. So I want to move to scatter plot. So there are certain requirement of the scatter plot. Let's understand what is that meaning of scatter plot. So first thing is, scatter plot is where it is applied. So scatter plot is only applied where X is variable and Y is variable. Okay. So I can say it in this way. Let me also take the marker. Okay. So if X is variable and Y is also variable, then there is an application of scatter plot. O should be variable. And can you tell me that earlier chart, like
CI plot and interval plot, I mean, and the box plot. What was the application as compared to this? What was the situation over there? So वहाँ जो हम apply कर रहे थे वहाँ पे what was the situation? Y was variable and X was attribute. Yes, so Y variable था और X attribute था, correct. So अभी हम कौन सा situation में move कर रहे हैं? उस quadrant में move कर रहे हैं जहाँ दोनों ही variable. So Y is also variable and X is also variable. Very correct. So उसका कोई example दे सकते हैं ऐसा कौन सा situation हो सकता है आपके आसपास या in your project or in your experience जहाँ पे आपका output भी variable था input and I wanted to know the relationship or significant factor, both are variable. So I will share many examples, but just wanted to know कि आप इस situation को कैसे visualize करते हैं. दोनों ही variable हैं. Yes. So how will you visualize this particular situation? Can you share some example? कोई ऐसे दो वेरिएबल लीजिए जो आपस में कोरिलेटेड हैं और दोनों वेरिएबल्स हैं, मतलब वेरिएबल कैटेगरी. एक इनपुट है एक आउटपुट है. वन इज इनपुट, वन इज आउटपुट. ले सकते हैं सर, जैसे हमारे प्रोजेक्ट में था ना मेल्ट कुशन, कि अगर हम इंजेक्शन प्रेशर जो वेरिएबल है, करेक्ट, तो उसको वेरी कर रहे हैं तो मेल्ट कुशन जो है वो भी हमारा एमएम में निकल के आता है कि इतने एमएम जो वेरी कर रहा है. मैं अगर वाई ले लूं और एक्स मेल्ट कुशन वाई, यस, तो अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ेगा मेल्ट कुशन पे, करेक्ट. यस. और मैं यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ, क्या कर रहा था, स्पीड या इंजेक्शन प्रेशर? व्हाट? इंजेक्शन प्रेशर. हाँ, कोई एक पैरामीटर ले लेंगे. इंजेक्शन प्रेशर, इंजेक्शन टाइम, ये सारे वेरिएबल हैं. इंजेक्शन टाइम प्रेशर के साथ इंजेक्शन टाइम भी वेरी करेगा, मतलब वो भी वाई में. प्रेशर, इंजेक्शन टाइम, ओके, एंड कोरिलेटेड विद द cushion effect, मेल्ट कुशन, on the yes, board, correct. So this is y variable, x variable. So it's a good example, and those who have seen last time the project discussion, I think they could grab it. कि इस situation में मैं, I think I have already spoken to you कि you can apply this particular tool over there. कि आप एक correlation ANOVA टेस्ट के लिए बोला था आपने. ANOVA, and also for variable you can also apply scatter plot. Yes. The linear line and all relationship. Okay, so this is one example. Other example from other team, anybody want to, where I can apply scatter plot, y variable, x variable? Because we have to visualize the tool where I can apply. Then I will tell you that the interpretation, the concept of this, how to do it in Minitab, and then it's just a matter of click and graph will appear, and it is our ability to interpret the graph and the situation which we have to apply. करेक्ट. सर और कोई एग्जांपल है किसी और टीम के पास? अच्छा, शाफ्ट की राउंडनेस है, तो किसी के शाफ्ट वेरिएशन पे काम कर रहे थे ना, कौन किसका था प्रोजेक्ट? हाँ, सो यस काजल. सो शाफ्ट का जो वेरिएबिलिटी है वो वेरिएबल है, वाई आउटपुट है. कोई ऐसा एक्स है आपने? हाँ सर, जो इसकी टर्निंग इनपुट देते हैं, that is also variable. तो टर्निंग मशीन स्पीड हो गई या कुछ भी आपका वेरिएबल होगा. कूलिंग का होगा, टर्न करता है, फ्लो हो गया. यस सर. कूलेंट फ्लो वर्सेस से राउंडनेस मशीनिंग, और so it could be anything which has to be variable parameter. अगर वेरिएबल नहीं होगा तो एट्रीब्यूट होगा. सिंपल है, वाई वेरिएबल होगा तो ठीक, एक्स वेरिएबल होगा, अदरवाइज एट्रीब्यूट होगा. एट्रीब्यूट होगा तो अदर टू लग जाएगा. सो नाउ दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द टूल. सो हमें ये क्लियर हो गया स्कैटर प्लॉट कहाँ पे एप्लीकेबल है. नाउ व्हाट इट डज, ये करता क्या है? द स्कैटर प्लॉट से हमें अचीव क्या करना है? डेफिनेटली हर जगह में ये अचीव करना है सिग्निफिकेंट कॉज. इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट कॉज, बट
How it is going to do it? So that's the point we are making here. So ये relationship ढूंढता है basically. ये एक relationship chart है. So it works on relationship. What is the meaning of relationship here? दो फैक्टर आपस में कैसे कोरिलेटेड है. कोरिलेटेड का मतलब ये है कि what does it mean? कि x वेरी होगा तो y भी वेरी होगा, और x नीचे जाएगा ऊपर जाएगा तो y भी उस हिसाब से बिहेवियर में चेंज होगा. So it basically depends on the relationship chart. So we are creating a relationship over here. Okay. So let me explain. There are three kind of relationship you can do over here. चार्ट में कैसे देखना अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे, केस स्टडीज देख लेंगे. बट पहला रिलेशनशिप है, वी कॉल इट पॉजिटिव रिलेशनशिप. सो एक एक्सिस है, अब यहाँ पे एक्सिस बहुत क्लियर है, y हमारा y एक्सिस पे आएगा, प्लॉट x x पे होगा, एंड मिनी टाइम में पूछेगा वेयर व्हाट इज योर y, व्हाट इज योर x, सो यू कैन इजीली डिफाइन इट एंड देयर विल बी प्लॉट्स ऑन दैट. सो व्हाट इज कॉल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप इज, अगर मैं ऐसा कुछ पॉइंट्स प्लॉट करूं जो ये शो करे कि x will increase then y will also increase, or x decreases then y also decreases. So it is a relationship of proportional. It is a directly proportional relationship, not inversely proportional. So it's a directly we can correlate it. So y increases, x increases, y increases, x decreases, y decreases. So what is the output? How it will appear? We call it a positive relationship. So आपका वो नजर कैसे आएगा, जो डॉट्स होंगे, आपके डॉट्स होंगे, उन पे अगर आप क्लोजली एक लाइन एसोसिएट करोगे तो आपको ये स्लोप ऑफ द लाइन से नजर आएगा. आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर ऑन, राइट, व्हाट इज दिस लाइन मींस, व्हाट इज द स्लोप मींस. बट आई एम सेइंग एक पैटर्न होगा जो ये शो करेगा, दैट इज गोइंग टू शो यू दैट व्हाट इज a relationship is all about, positive, negative, or so on. So positive is a relationship where all the points are showing कि मैं x1 x2 जैसे बढ़ेगा तो y1 y2 भी बढ़ेगा. So it's always happening like that. The slope is on increasing side, positive side. So that's the meaning of positive relationship. और इसको हम general term में बोलते हैं friendliness. Okay. So friendship positive relationship मानते हैं between two variables. Why we call it friendship? Because friendship ऐसा relationship है. Yeah, positive relationship, dear Manish. So friendship ऐसा relationship है कि एक ने बोला दूसरे ने मान लिया बात को, you know. So we call it friendliness. कि x increase हुआ तो y भी increase हो गया. So a friend is saying to, you know, other friend, okay, let's go to movie. The other guy is also agreeing, let's go to movie. So both are agreeing on the same points. So उसमें कोई conflict नहीं है कि एक opposite नहीं जाएगा, inversely नहीं जाएगा. So there will be no inverse relationship. It will be only unidirectional relationship, increasing or decreasing, right? दोनों increase हो रहे हैं, दोनों ही decrease हो रहे हैं. So the term is called positive relationship, and you can also call it friendliness. Okay. The second relationship that you can see in the axis, y and x pattern basically is like that. So this is the pattern you can see. एंड पैटर्न पॉइंट्स पे देख के अगर आपको विजुअलाइज नहीं होता तो हमें कई बार एक लाइन खींचनी पड़ती है. सो आई विल एक्सप्लेन दिस मीनिंग ऑफ द लाइन. सो उस लाइन से स्लोप मिलता है. सो स्लोप देखना बहुत आसान होता है. स्लोप से इट इज गेटिंग वेरी क्लियर कि आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव स्लोप है. सो वंस द स्लोप इज क्लियर टू यू, then you can identify what is slope of a line. I will explain it. So it's all academic thing, but I will explain in few minutes. So this relationship shows when x is increasing, y is actually decreasing, right? You can look here. जब मैं x की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ तो y एक्सिस पे वैल्यू डिक्रीज हो रही है. You can easily look into it. So हम इसको नेगेटिव स्लोप बोलते हैं या नेगेटिव रिलेशनशिप बोलते हैं. इंटरेस्टिंग ये है कि रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट इन स्टैटिस्टिकल टर्म, whether positive, whether negative.
Here negative means actually enmity. जैसे मैंने positive में बोला friendliness, और यहाँ enmity. So आपका या तो enmity होगा या friendliness होगा. So enmity को भी हम relationship count करते हैं. It is a part of it. Correct? So enemy is counted as relationship. Advantage क्या होता है कि हमें ये पता चल जाए कि ये फैक्टर अगेंस्ट काम कर रहा है, मतलब इट इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, इट डज नॉट मैटर, बट इट इज कोरिलेटेड विद दैट पैरामीटर. सो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड द कोरिलेशन. इज इट फाइन? वेदर पॉजिटिव और वेदर नेगेटिव रिलेशनशिप. सो अगर आपका स्लोप डिक्रीजिंग आए, माइनस साइड आए, तो आप उसको नेगेटिव रिलेशनशिप बोल सकते हैं. ओके, बट ये अभी भी रिलेशनशिप काउंट किया जाएगा, सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज रिलेशनशिप. अब थर्ड लेवल पे आते हैं हम लोग. एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर देन विल गो इनटू द एग्जांपल्स. थर्ड लेवल है जो उसको हम बोलते हैं जीरो रिलेशनशिप. अब इस तरह का जो एक स्फेरिकल क्लाउड बन गया है, स्कैटर्ड हो गया है, तो अगर इसमें मैं कोई लाइन खींचने की कोशिश करूंगा तो आई कैन नॉट हैव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लाइन. मेरा लाइन कैसे आएगा? ऑलमोस्ट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब ऑलमोस्ट आपका जो लाइन है वो स्लोप में नहीं आएगा. जब भी कोई चीज पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, हम उसको स्लोप जीरो बोल सकते हैं. मतलब बेसिकली इट हैज नो स्लोप, मतलब टिल्टेड नहीं है, वो एंगुलर नहीं है, उसमें थीटा क्रिएट नहीं हो रहा. ओके, सो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि हम कुछ भी करते रहे, y को फर्क नहीं पड़ेगा. इफ x इज चेंजिंग, y इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट. सर इस रिलेशनशिप से क्या पता चलेगा? इफ x इज चेंजिंग, y इज नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट द x वेरिएशन. और हमारा x क्या है? KPIV, की प्रोसेस इनपुट वेरिएबल. और वेरिएबल चेंज होने से y में भी फर्क आना चाहिए. अगर वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा, सो yeah, what you are writing. So x is not responsible for y. Yes, Manish, correct. So हम ये बोल सकते हैं कि x innocent है. एक टर्म यूज कर सकते हैं, innocent है. So, innocent means what? Innocent means guilty नहीं है. Guilty means significant है, problematic है, और innocent mean it does not create any problem or it has no relationship. Relationship नहीं है का मतलब negative positive दोनों ही नहीं है. Stranger, you can use a word again here for the third level of relationship is stranger. So what is stranger relationship? Is simple that X has no relationship with Y. Okay. सो ऐसे कॉज को छोड़ देना चाहिए. सो जिस कॉज को छोड़ देना चाहिए, कोर्ट की लैंग्वेज में हम उसको इनोसेंट बोलते हैं. सर देखिए, कोर्ट जो होता है वो अगर गुनहगार होगा तो उसे छोड़ेगा नहीं, जो गिल्टी होगा उसको पकड़ेगा, और जो गिल्टी नहीं होगा उसको छोड़ देगा. तो उसको हम बोलते हैं इनोसेंट है, उसको छोड़ दो. तो यहाँ पे हम लोग सेम लैंग्वेज यूज कर सकते हैं दैट अगर कोई चीज गिल्टी है तो उस पर एक्शन लेना है, उसको पकड़ लो. दैट KPIV इज इम्पोर्टेंट. और अगर कोई चीज आपको लगता है दिस कॉज इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, इट इज इनसिग्निफिकेंट कॉज, तो उसको छोड़ दो. सो छोड़ने का मतलब क्या है? वो इनोसेंट है, तभी हम उसको छोड़ रहे हैं. तो उसका स्टेटस क्या है? इनोसेंस है उसमें. जो इनोसेंट होता है उसको छोड़ देते हैं. जैसे बच्चा होता है, वो इनोसेंट होता है, तोड़ भी दे सामान, आपका घर का सामान, तो आपको ऐसे सजा नहीं देते उसको कि 2 साल की जेल है, ग्लास तोड़ दिया. कोई नहीं करता. क्यों? बिकॉज का स्टेटस इनोसेंट है, वो KPIV इनोसेंट है, लीव इट. So can I use the word innocent and guilty? So इन 3 सिनेरियो में कब एक KPIV इनोसेंट माना जाएगा और कब गिल्टी माना जाएगा? If there is no relation. Yeah, can you repeat? If there will be no relation, then that will be innocent. Yes. So no relation correlation में innocent माना जाएगा, insignificant माना जाएगा. और किस में guilty माना जाएगा?
What is There will be the a positive relationship. in case of? Positive relationship. Okay. और इसमें क्या करें? What we should do with this? ये आपने बोल दिया गिल्टी हो गया। सर इस दोनों केस में तो हो सकता है, बट पहले तो ये हो कि हमारा वाई जो है वो क्या है। नहीं, कैन यू रिपीट अगेन कि पॉजिटिव रिलेशनशिप में तो गिल्टी है, नेगेटिव में भी तो होगा, लेकिन पहले पता तो हो कि वाई क्या है, हमारा सिग्निफिकेंट जो प्रॉब्लम है वो क्या है। हम तो हायर अगर मतलब जैसे कोई स्पेसिफिकेशन की बात करें कि हायर साइड में आ रहा है ये हमारा प्रॉब्लम है, लोअर साइड में जा रहा है ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। जब लोअर साइड में जा रहा है ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है तो नेगेटिव रिलेशनशिप भी हमारा तो मतलब गिल्टी नहीं होगा। बट अगर हायर स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है या लोअर की बात हो रही है, लोअर में नेगेटिव नीचे की तरफ जा रहा है, तो फिर तो नेगेटिव रिलेशनशिप में भी आ जाएगा गिल्टी। अच्छा, थोड़ा सा आप ये समझ लो, नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि चीजें कम हो रही हैं, और पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है बढ़ रही हैं। मैं आई एक्सप्लेन इट राइट। एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, और एक्स कम होगा तो बढ़ेगा। वाई भी कम होगा। सो इसमें भी चीजें कम होती हैं और बढ़ती हैं, यू अंडरस्टैंड दैट। बट वो होता क्या है यस। कि पॉजिटिव वर्ड क्यों यूज किया है? फ्रेंडली है, फ्रेंड ने बोला मूवी चलना है, दोनों ने चला, बोला नहीं चलना है, दोनों ने मना कर दिया। सो यहाँ नेगेटिविटी भी है, यहाँ डिक्रीजिंग ट्रेंड भी है, बट एक्स के डिक्रीज होने से ही वाई डिक्रीज होता है, और एक्स के बढ़ने से ही वाई बढ़ता है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नेगेटिव रिलेशनशिप, इसका मतलब ये नहीं वो वाई डिक्रीज ही हो रहा है, नो। एक्स के डिक्रीज होने से वाई इंक्रीज हो रहा है, और एक्स के इंक्रीज होने से वाई डिक्रीज भी हो रहा है, बट रिलेशनशिप क्या है? उल्टा है। इज इट फाइन? तो अब मैं अगर ये सवाल दोबारा पूछता हूं आपसे कि नेगेटिव रिलेशनशिप में क्या माना जाएगा? इनोसेंट, गिल्टी? If there will be a relationship, na, so that will be guilty, sir. Either in positive, either in negative. यस। सो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई और एक्स का संबंध होना चाहिए बस। अगर एक्स ऐसा मिल गया तो मुझे आई कैन कंट्रोल दी एक्स एंड सॉल्व माई वाई प्रॉब्लम, राइट? सो हम उसको गिल्टी मानेंगे। तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है। यस हरीश, गुड रोड वर्सेस एक्सीडेंट। ओके, हाँ ये ठीक है, गुड एग्जांपल। रोड अच्छी है फिर भी एक्सीडेंट हो रहा है, रोड खराब है एक्सीडेंट हो रहा है। सो दोनों, तो नेगेटिव रिलेशनशिप भी रिलेशनशिप हो सकता है। अब गुड रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है सर, गड्ढे भी नहीं है, बहुत स्मूथ है, तब भी हो सकता है रिलेशनशिप। यस। सो हरीश ने पॉइंट लिख दिया, अच्छी रोड है इसलिए एक्सीडेंट हो रहा है, ये भी संबंध है। एनीबॉडी कैन कोऑपरेट, ये बात ठीक है या क्या? राइट सर, राइट है। आप Yes, जैसे नेशनल हाईवेज बने, सॉरी नेशनल हाईवे नहीं, एक्सप्रेस हाईवेज बने थे ना, ये आगरा वाला, तो सबसे पहले यही आया था न्यूज कि 10 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, because they could not control the speed। ठीक है, so bad road will definitely have accident, but good road may have accident। so एक पॉजिटिव है तब भी दूसरा नेगेटिव, so संबंध इंपॉर्टेंट है। स्पीड कंट्रोलर्स लगाने पड़े। so I agree 100% कि हमें we have to look into the relationship part, और एनिमिटी भी एक संबंध है, ये हमें मान के चलना चाहिए। ओके, क्योंकि आप अपने दुश्मन के बारे में सोचते जरूर हैं। सो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट समवन, यू आर कोरिलेटेड। अगर कोई स्ट्रेंजर आपके सड़क से चला गया, आप उसके बारे में नहीं सोच रहे, देन इट इज नो रिलेशनशिप। बट यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग नेगेटिव, पॉजिटिव, डोंट केयर और अपोजिट, यू एग्जिस्ट इन ए रिलेशनशिप। और कई बार तो ऐसा होता है कि नेगेटिव रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है देन दी पॉजिटिव। लोग दोस्तों के बारे में कम सोचते हैं, दुश्मन के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और ऐसा हो जाता है। सो वी कॉल इट फ्रेंडलीनेस ए रिलेशनशिप, एनिमिटी ए रिलेशनशिप, स्ट्रेंजर नो रिलेशनशिप। सो इज इट फाइन? अच्छा, अब ये सर बताएंगे कि नाम स्कैटर प्लॉट जो पढ़ा है वो क्या बताता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैटर प्लॉट?
ये किस स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है? स्कैटर प्लॉट मतलब इनोसेंट और गिल्टी, मतलब किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? Guilty. Guilty. Okay. Any other thing? So आपका ये सोचना ठीक है, this is your good thinking that every tool has to find guilty, right? लेकिन जो स्कैटर प्लॉट नाम पड़ा है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इनोसेंस ढूंढना। अगर इनोसेंस नहीं मिला तो गिल्टी है। मतलब हम इनोसेंट सोच रहे हैं और नहीं मिला तो गिल्टी माना जाएगा। इज इट फाइन? क्योंकि स्कैटर्ड मतलब क्या है? जब डेटा स्कैटर्ड है, ऐसा सोचिए ना आप, अगर डेटा स्कैटर कर दो, कोई पैटर्न ना हो, स्कैटर मतलब आप समझ रहे ना, व्हाट इज द टर्म फॉर स्कैटर? रैंडमली फैल जाना, स्कैटरिंग, राइट? जैसे रेज होती है ना, स्कैटर्ड हो जाती है। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, कंक्लूजन ऑफ इनोसेंट और नॉन इनोसेंट। ठीक है, हम यहाँ नॉन इनोसेंट के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं गिल्टी बेसिकली। सो मैं इनोसेंट का अपोजिट जो यूज कर रहा हूँ वो नॉन इनोसेंट नहीं यूज कर रहा हूँ। आई एम सेइंग इनोसेंट एंड गिल्टी। सो इज इट फाइन टू यूज दोस टर्म्स? अपोजिट ऑफ इनोसेंट आई एम यूजिंग एज गिल्टी। गिल्टी मतलब कल्प्रेट है, सिग्निफिकेंट कॉज है। इनोसेंट मतलब इनसिग्निफिकेंट कॉज। ओके, तो सॉरी आई वाज वेयर स्कैटर्ड। कोई चीज स्कैटर्ड हो जाती है मतलब फैल जाती है किसी भी डायरेक्शन, रैंडमली फैल जाती है। तो अगर कोई चीज रैंडमली पॉइंट्स फैल जाए, किस संबंध के बारे में बताएंगे? नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव। सर इसमें अगर मैं लाइन बनाऊं, ओके, तो लाइन का टिल्ट किस तरफ जाएगा? मतलब ऐसे बढ़ता हुआ अपहिल और डाउनहिल या फ्लैट, कैसा लग रहा है? zigzag रहेगा ना सर, अपवर्ड Correct. डाउनवर्ड टाइप। स्कैटर्ड पॉइंट हो गए तो लाइन का स्लोप कैसे जाएगा? जैसे पहले मैं एक नॉर्मल बता देता हूँ कि अपवर्ड लाइन का स्लोप कैसे जाता है जब पॉइंट्स इस पैटर्न में होते हैं। ठीक है ना सर? अभी ऐसे जाएगा ना, ये क्लियर है ना सर? कर्व बनेगा सर, स्लोप नहीं आएगा इसमें। हाँ, अब y और x अगर ऐसा पैटर्न होगा तो स्लोप नेगेटिव साइड आ जाएगा। मैंने क्या बनाया इसको ध्यान से सोचिए। मैंने ना कोई पैटर्न नहीं बनाया है। एज ए स्फेरिकल राउंड मतलब कोई पैटर्न नहीं है सर, स्कैटर्ड है। तो इसमें लाइन का स्लोप क्या बनेगा? स्लोप नहीं बनेगा सर इसमें। No angle. स्लोप नहीं बनेगा। तो स्लोप नहीं बनने का मतलब क्या होगा? लाइन कैसे डेटा में दिखाई प्रॉब्लम हो देगी? सकता है। No sense. ऐसे दिखाई देगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्योंकि स्लोप ना होने का मतलब है जीरो एंगल, राइट? जीरो एंगल। ठीक है ना? अभी स्लोप के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, दैट इज ओके। बट अगर स्कैटर्ड है तो उसका मीनिंग क्या निकल रहा है? इनोसेंट या गिल्टी, ये पूछ रहा था। यस, Innocent. आप बता सकते हैं या? इसका यू वांट टू से समथिंग? इनोसेंट ही होगा सर। Innocent is no particular. यस मनीष। सो इनोसेंट ही होगा, वेरी करेक्ट। सो इसका मतलब स्कैटर वर्ड जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इनोसेंस को। कि हम इनोसेंट ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला तो गिल्टी है। सो आप इसका लॉजिक ऐसा समझ लीजिए, जब कोई एक्स एंड वाई वेरिएबल है, हम ये मान के चल रहे हैं ये इनोसेंट ही होंगे, लेकिन एक बार टेस्ट कर लेते हैं और अगर इनोसेंट नहीं निकले तो गिल्टी होगा। स्कैटर्ड ही होना चाहिए, रैंडमनेस होना चाहिए, दो लोग अपना अलग अलग इंडिपेंडेंस होना चाहिए, जिंदगी बिताना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई संबंध है तो वो पैटर्न में दिख जाएगा। तो इसके लिए नाम रखा है स्कैटर प्लॉट। तो नाम किस बेसिस पे रखा है? इनोसेंस बेसिस पे रखा है। लास्ट टाइम आल्सो आई वाज टॉकिंग अबाउट जनरल जो
सर बायस थिंकिंग क्या होती है और अनबायस थिंकिंग क्या होती है? बायसिंग होती है कि पहले से ही गलत नजर से देख, जैसे अभी बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कोई आपके पास आए, जस्टिस में काफी पॉपुलर है इन द एरिना ऑफ जस्टिस, कि कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आए कि यार उस आदमी ने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये प्रॉब्लम किया है, एंड ही इज टेलिंग लॉट ऑफ थिंग अबाउट ए पर्सन कि दैट गाय इज वेरी बैड, he stole my money, he did not return my money, he is very criminal kind of person. तो आप क्या करोगे? और वो आपका बहुत अच्छा जानने वाला है जो आपको ये बोल रहा है, तो जनरली हम लोग इमीडिएटली मान ही लेंगे, करेक्ट, कि जो बोल रहा है ठीक है। सो कहते हैं नहीं, ये बायस थिंकिंग है। अगर दो लोगों के बीच झगड़ा है तो एक बार दोनों की बात जरूर सुन लेनी चाहिए। व्हाट डू यू से? सर कितना भी एक आदमी ने गलत किया है, एक बार उसका भी पक्ष सुन लेना चाहिए कि चलो आप भी बता लो क्या कहना चाहते हो, व्हाट यू रियली वांट टू से। सर डू यू एग्री टू दिस पॉइंट और नॉट? कोई आदमी अपनी प्रॉब्लम लेके आता है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे जानने वाले हैं, यू आर वेरी क्लोज टू मी सपोज, एंड आई टेल यू दैट सम गाय हैज डन वेरी बैड टू मी, एंड व्हाट बैड ही हैज डन, आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग, एविडेंस में सब बता रहा हूँ, उसने बहुत बुरा किया, तो आप क्या करोगे एज ए नेक्स्ट स्टेप? और बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन है, आपके जानने वाला है, यस, trust on him. यू ट्रस्ट ऑन हिम, राइट, मान लोगे, तो इसको बायस थिंकिंग बोलते हैं कि आपका वो अच्छा दोस्त है इसलिए आपने मान ली, एक बार दूसरे का पक्ष भी सुन लेना चाहिए था। ये आदमी वो सुन सकता है जो मानेगा, इनिशियली इनोसेंस हो सकता है, एक बार गिव हिम वन चांस। व्हाट डू यू थिंक? अगर इनोसेंस थिंकिंग से चलोगे तो पहले आप उसको एक चांस दे दोगे, अगर बायस थिंकिंग से चलोगे तो एक बार अगर मैं सुन लिया किसी के बारे में बुराई या प्रॉब्लम सुन लिया, देन आई विल एग्री टू इट। इज इट फाइन? सो ये जो चार्ट है ना, ये भी इनोसेंस थिंकिंग पे, ये एकदम मानता नहीं है गिल्टी वगैरह, हो सकता है ये एक्सेस प्रॉब्लम है, आपने केपीआई भी में लिया है, बट मुझे लगता है इनोसेंट है, एक बार चेक कर लेते हैं। So that is why the name has been given scatter plot. Or you can have another example. Sir, there was one boy, one girl. They stepped down from the. First, they boarded on the bus. Then they stepped down from the bus and walked. They together walked. So, what do you think? What is their relationship? यू डोंट नो देम, आपने देखा एक लड़का था एक लड़की था, बस से उतरे और चलना शुरू कर दिया, और कोई नहीं उतरा उस स्टॉप पे, दो लोग उतरे और चलना शुरू कर दिया। सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट बॉय एंड द गर्ल? ऑब्जर्वेशन में बता दिया, दो लोग बस से उतरे, साथ उतरे और चलना शुरू कर दिया। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट देयर रिलेशनशिप? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, यस सर एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। सर एक सिंपल सिनेरियो दिया मैंने, एक बस रुकी बस स्टॉप पे, राइट, उसमें एक देयर इज वन बॉय एंड वन गर्ल, दे जस्ट स्टेप डाउन ऑन द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पे उतर गए दोनों और चलने लग गए। सो आपको इतना ही ऑब्जर्वेशन है, आपके पास इतना ही डेटा है, सो आपको उनके रिलेशनशिप के बारे में क्या इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज योर ओपिनियन? या तो रिलेटिव होंगे या फ्रेंड होंगे, या जहाँ से चले एक साथ चले, एक साथ सेम लोकेशन पे जाना होगा उनको। तो
वो या तो फ्रेंड होंगे एक दूसरे के या रिलेटिव होंगे, बट पता है आपने क्या किया है, आपने उनको रिलेट कर ही दिया है फर्स्ट कर ही लेवल, दिया। उनका रिलेशनशिप बना दिया है। तो बॉयफ्रेंड होगा, वो गर्लफ्रेंड होगा, या सिस्टर होगा, ब्रदर, बट ये भी तो हो सकता है वो स्ट्रेंजर हो, बस ऐसे ही उतर के हो बस से, क्योंकि साथ उतरते देखते ही आपने उनको बायस थिंकिंग से देख लिया कि देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि जो स्कैटर है वो फर्स्ट लेवल पे इनोसेंस से स्टार्ट करता है। तो सर जनरल अभी मैंने तीनों बताया, या तो रिलेटिव होंगे या मतलब फ्रेंड होंगे, और तो तीसरा मैंने ये भी बोला था कि हो सकता है एक जगह से चढ़े हों और एक जगह उनको अगले लोकेशन पे जाना हो तो साथ में उतर के जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने कहा नहीं, वो तो पॉसिबिलिटीज हो गई, आप फर्स्ट गो में क्या सोचोगे, ये था मेरा सवाल। हम्म। तो आपका जो फर्स्ट दो प्रायोरिटी ये थी, अगर मैं प्रायोरिटी से चलूं कि फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, या फिर तो हमें उल्टा चलना है कि ये कहीं आए या और जा फिर रहे थे, कोई लेना देना नहीं था। ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा स्कैटर प्लॉट का, और अगर कुछ होगा तो वो चार्ट पे दिख जाएगा। सो इज इट क्लियर? सो द क्लियर। नेम हैज बीन गिवन बेस्ड ऑन इनोसेंस, नॉट द बायस थिंकिंग। और जरूरी भी है कि जब आप अनबायस्ड हो तभी सही डिसीजन ले सकते हो। क्यों सर? पहले से आप मान लोगे कोई चीज को तो आपका रिलेशन तो थोड़ा डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज व्हाट दिस स्कैटर प्लॉट डज। सो तीन रिलेशनशिप देखता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रेंडलीनेस, एनिमिटी, स्ट्रेंजर, करेक्ट? और कोई रिलेशनशिप हो नहीं सकता, वाई वेरिएबल एक्स वेरिएबल ये होना चाहिए। सो दिस इज द पॉइंट, एंड with this the basic introduction of scatter plot is over. Now I move into the detailing interpretation of the graphs. So यहाँ तक clear है सर? किसी को डाउट तो नहीं? Does it make sense? और ये रिलेशनशिप क्यों ढूंढ रहे हैं, अल्टीमेटली क्या है, सिग्निफिकेंट कॉज मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना हरीश? ओके, थैंक यू। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, देखिए क्या है कि टूल को समझाने में टाइम लगता है, करने में सेकंड्स का काम होता है। तो फ्रेंडलीनेस and was stranger we discussed. Like, let's take an example here. Type of relationship. So मैंने ये रिलेशनशिप बनाया है रनिंग आवर्स वर्सेस यूनिट जनरेटेड। डीजी सेट में हम लोग एक काम कर रहे थे, और डीजी सेट में डीजी सेट में इश्यू क्या था, हमने एक रिलेशनशिप निकाला, y is equal to fx. What is the relationship we found? कि कितने घंटे डीजी चलेगा तो कितना यूनिट जनरेट कर। सो पावर जनरेटेड must be utilized, otherwise it will go waste. We cannot store the power unless there is a battery involved. But generally जो डीजी सेट ने पावर जनरेट, जैसे हमारा थर्मल पावर प्लांट है, उसने पावर जनरेट कर दी, सो आपको क्या करना होता है, उनसे बोलो स्टोर कर लो, जब जरूरत होगी ले लेंगे आपसे। तो ऐसा क्यों नहीं करते हो? चलिए, बिजली जाने का तो कोई लॉजिक ही नहीं होना चाहिए, फिर आप चलाते रहो और जमा करते रहो, जैसे आप प्रोडक्शन करते हो, इन्वेंट्री बनाते रहो, और जब हमें चाहिए होगा हम लेते रहेंगे। So as of now, we have no mechanism to store the electricity. I'm talking about the main thermal power stations and all. वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आप बैटरी छोटे घर में आप ये कर सकते हो, not stored. Sorry, I mute the mic. Maybe you want to say something or is a noisy atmosphere. So आप दोबारा unmute करके बोल सकते हैं। So AC cannot be stored, right? That's what the point is. So वो एक बार जनरेट हो गई तो या तो आपको उसको कंज्यूम करो। Yes, exactly. तो DC में फिर वो इन्वर्टर कॉन्सेप्ट ही आता है, वो बेसिकली वही लॉजिक है कि आप AC को DC में करो, DC को स्टोर करो, फिर उसको वापस लो, एंड सो ऑन। एंड सो AC आपने जनरेट कर दिया है, अल्टरनेटिव करंट वो आपने जनरेट कर दिया AC, और आपको फिर स्टोर नहीं कर सकते, यूज करो। अब सवाल ये आता है कि अगर आपने इसको कंज्यूम नहीं किया तो वेस्टेज माना जाएगा।
उसको एफिशिएंटली कंज्यूम नहीं किया है। सो डीजी सेट को भी आप ऐसे मान लो कि आपने एक जनरेट कर दिया पावर, अब आपको उसके यूनिट कितने जनरेट हुए और कितने कंज्यूम होने चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। पहले पता चले कितने घंटे डीजी सेट चलने पे कितने यूनिट जनरेट होते हैं। तो क्या ये रिलेशनशिप नहीं है, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ डीजी जो चला और जितने यूनिट किलोवाट आवर यूनिट जनरेट, तो ये संबंध हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो हमने ये कोरिलेशंस निकाल लिए और पॉजिटिव भी होगा डेफिनेटली, जितने ज़्यादा घंटे चलेगा उतना यूनिट ज़्यादा जनरेट होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स उतने हम लोग ज़्यादा जनरेट करेंगे। सो अभी हम ये बात करते हैं कि ये लाइन हमें स्लोप बताता है, तो लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, वी अंडरस्टैंड दिस नाउ। सो एनी लाइन दैट वी डिफाइन in this world, any line we define will have only two features. एक लाइन के दो ही प्रॉपर्टीज हैं और कोई इसका कोई पैरामीटर है ही नहीं, दो पैरामीटर पे ही वो सरवाइव करता है। एक है कि आप उसको टेढ़ा और सीधा कितना बना रहे हो। मैं एक लाइन ऐसे भी खींच सकता था, एक लाइन ऐसे भी खींच सकता था, एक लाइन ऐसे भी खींच सकता था, राइट। सो मैं लाइन को कैसे भी खींच सकता हूँ। सो मैं ये जो कितना टेढ़ा और सीधा खींचना है इसको मैं थीटा एंगल से डिफाइन कर दूं। सो इसको मैं स्लोप नाम दिए, तो थीटा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्लोप है, अगर मैं ऐसे टेढ़ा कर दिया तो ये नेगेटिव थीटा हो गया, तो ये नेगेटिव स्लोप हो गया। सो एक मेरा पैरामीटर हो गया स्लोप, तो इस लाइन का भी कोई स्लोप होगा डेफिनेटली होगा, सॉरी सो एक पैरामीटर हो गया मेरा थीटा, इसको मैं स्लोप बोल सकता हूँ। और ये किसके रिस्पेक्ट में होता है, हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब थीटा आप यहाँ से भी देख सकते थे बट इसको एक्स के रिस्पेक्ट से थीटा देखना है। एक स्टैंडर्ड बना दिया बेसिकली, ऐसे नहीं आप थीटा तो कहीं से भी देख सकते हो। सो आपको एक स्टैंडर्डाइज तो करना पड़ेगा। अगर मैं लाइन का थीटा बोलूंगा तो विद रेफरेंस टू वेयर, तो आप बोलोगे कि मैं एक एक्स के रिस्पेक्ट में ही थीटा देखूंगा, तो सबको एक ही लैंग्वेज क्लियर होगी। और थीटा को और वो स्लोप को कोई नाम दे देंगे, उस वैल्यू को, कैन बी एनी वैल्यू। सो जिससे एम मैंने कोई नाम दे दिया, इसकी ये स्लोप है। ओके, सो देयर इज अ स्लोप, राइट। सो एक पैरामीटर स्लोप हो गया, यस। So correct, what you wrote is correct. So there is a slope parameter. अब एक प्रॉब्लम ये होती है कि स्लोप हो सकता है इस लाइन का भी सेम है, मैं एक पैरेलल लाइन बना देता हूँ, स्लोप तो दोनों का थीटा सेम ही होगा, ओके, रिस्पेक्ट टू द एक्स। लेकिन ये दो लाइन एक नहीं है, मेरे को इतना मालूम है, आई कैन रियली विजुअलाइज एंड सी प्रैक्टिकली, ये दोनों लाइन एक नहीं है, तो कोई तो पैरामीटर इसमें फर्क आ गया होगा। मतलब मैंने अगर पैरेलल लाइन बनाई है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी पैरेलल नहीं दिख रही है आपको, बट पैरेलल मान लेते हैं, सेम थीटा है। सो इसमें फर्क क्या आ रहा है बेसिकली, क्या फर्क दिख रहा है आपको दोनों लाइनों में? मीन शिफ्टिंग, ठीक है, अब पूरा शिफ्ट ही हो गया, करेक्ट। अब उस मीन शिफ्टिंग का को कहाँ से इवैल्यूएट करेंगे? सो उसको इवैल्यूएट करने का जो इन्होंने तरीका निकाला है, दिस मेड ए वेरी सिंपल मेथड, कि वाई पे कोई चीज कहाँ काट रही है वो हमें एक इंफॉर्मेशन देता है। डेफिनेटली ये अगर सपोज 20 पे काट रहा था एग्जांपल और ये 40 पे था, सो ये दोनों का वैल्यू में जो 20 का जो डिफरेंस आया है, ये आपका ये इंटरसेप्ट बोल सकते हो, काटने का जगह इंटरसेप्ट। सो एक पैरामीटर हो गया, मैं सी कोई भी ले लेता हूँ, इंटरसेप्ट। इंटरसेक्शन, राइट, इंटरसेप्ट करना, किसी को वहां पे काटना, ओके, इंटरसेक्शन बोल सकते हैं, इंटरसेप्ट बोल सकते हैं। जैसे आर्मी में बड़ा होता है कि सबको पता है रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहे हैं तो मिलाते रहते हैं, तो उसको उधर काटना, उसका लाइन को, उसके लाइन को पकड़ लेना। आप देखते हो मूवीज वगैरह में भी उधर का वॉइस उधर चला जाता है, उसका वॉइस उधर चला जाता है, क्योंकि कोई ऐसे डेडिकेटेड लाइंस नहीं है, दे हैव देयर ओन बैंडविड्थ। सो वो आप
वहां पे बैठा हुआ है जो रेडियोलॉजिस्ट होगा वो तो कर ही लेगा कुछ ना कुछ। सो अभी रिसेंट मूवीज वगैरह में भी देखा होगा आपने, जो स्पेशली जो आर्मी की हैं, आर्म फोर्सेस की, तो इंटरसेप्ट कर दिया उसने। सो लाइन को कहीं काटा है, पकड़ लिया। सो आप इन दोनों में फर्क थीटा का नहीं है, बट इंटरसेप्ट का फर्क है। वो इंटरेक्शन जहां हुआ है, जहां पे काटा है उसने, वो लाइन, वो पॉइंट सेम नहीं है। एक 20 था, एक 40 था, सो दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। दैट इज वेयर द लाइन इज डिफरेंट। सो दूसरा पैरामीटर हो गया इंटरसेप्ट, पहला पैरामीटर हो गया स्लोप, एंड दैट्स ऑल। लाइन पूरी डिफाइन हो गई। अब ये लाइन जो डिफाइन हो गई, इसका मतलब कोई थर्ड पैरामीटर है नहीं। अगर मैं दोनों सेम रख लूं तो आप दो लाइनें नहीं बना सकते अलग अलग। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा थीटा भी सेम है और इंटरसेप्ट भी सेम है, तो इसके ऊपर ही लाइन खींचनी पड़ेगी। क्यों सर? कोई तीसरी लाइन नहीं बनेगी। हाँ, लेंथ बड़ी छोटी हो सकती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। वो तो आप एक्स को कितना बड़ा स्केल पे ले जाना चाहते हो। बट अर्लियर यू सेड they are parallel to each other and parallel lines do not intersect with each other. Correct. So what your point you are making is ki intersection not of the line, intersection with the y axis. I told you कि हमें एक स्टैंडर्ड हमने क्रिएट किया है कि y पे जो काट रहा है उस पैरामीटर को हम पकड़ेंगे। जैसे मैंने थीटा बोला, सो थीटा कहीं से भी ले सकते थे, बट यहाँ पे थीटा x के रेफरेंस से, जिसको मैंने स्लोप बोला, वहां पे काटना लाइन का आपस में काटना नहीं है। इट्स नॉट लाइक कटिंग टुगेदर विद द लाइन विद ईच अदर, इट इज कटिंग द वाई एक्सिस। वाई हमेशा खड़ा है। रेफरेंस देखिए, ये लाइन का कोई रेफरेंस नहीं है। कल ऐसे आ सकता है, परसों ये लाइन ऐसे आ सकता है, यू नो टुमारो इट कैन बी लाइक दिस। मेरे पास जो रेफरेंस रेडी खड़े हुए हैं वो एक एक्स एक्सिस है और एक वाई है। सो मैं कोई भी स्टैंडर्ड बनाऊंगा उस रेफरेंस से बताना चाहिए जो हिलेगा नहीं, जो अपनी जगह खड़ा रहेगा, यू नो इट विल रिमेन देयर एज ए स्टैंडर्ड। सो मैंने थीटा तो एक्स के हिसाब से कर दिया, तो वो तो बुक हो गया बेचारा एक्सिस। अब एक ही एक्सिस बचा है मेरे पास, वाई। सो वाई के साथ काटने का मैंने एक पैरामीटर रख दिया कि वाई को कहाँ काट रहे हो आप। अच्छा, कभी तो अगर आपको अगर नहीं मेरी लाइन यहाँ पे है, मैं तो वाई को काटा ही नहीं, डोंट वरी, इसको एक्सटेंड करो, कहीं तो जाके कटेगा, कोई वैल्यू जरूर होगा। यू विल गेट सम काइंड ऑफ वैल्यू वेयर यू विल have some line के केस में। So exactly, so intersection with the y, not with the line. So is that point clear? So is this understandable? Like अब दो पैरामीटर जो बनाया मैंने, एक स्लोप ले लिया, उसका कोई नाम दे दिया, इंटरसेप्ट का कोई नाम दे दिया, सी पैरामीटर दे दिया, कुछ भी आप ए भी बोल सकते हो, एम और सी बोल सकते हो, इट इज अप टू यू। सो अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं स्लोप सेम रखूं, इस लाइन ये थीटा सेम रखूं, राइट, एंड इंटरसेप्ट भी सेम रखूं, सो आई कैन नॉट मेक टू डिफरेंट लाइन्स। एग्जाम्पल, ये दो लाइनें अलग क्यों हैं? एंगल डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है? एंगल डिफरेंस है दोनों में। अगर हम सो स्लोप का फर्क, ज्योमेट्री की बात करें, स्लोप का फर्क। हाँ, इंटरसेप्ट सेम है, ठीक है ना, इंटरसेप्ट सेम है, करेक्ट। अब मैं एक और लाइन बनाता हूँ, थीटा इसका सेम मान लेना। ये लाइन क्यों अलग है? इसमें स्लोप सेम है दोनों का, जो पैरेलल है एक दूसरे से, पर इंटरसेप्ट डिफरेंट है, ठीक है ना। इंटरसेप्ट डिफरेंट है। अभी दोनों सेम कर दो, ऐसा एक लाइन बनाओ जिसमें स्लोप भी सेम है, इंटरसेप्ट भी सेम है, तो क्या बनेगी? इसी लाइन के ऊपर लाइन खींचनी पड़ेगी। क्यों सर? यस यस यस। तो इसका मतलब कोई दूसरी, सो लाइन बनाने के लिए दो ही पैरामीटर चाहिए और कुछ चाहिए नहीं हमारे को, राइट। अच्छा, लेंथ ऑफ द जो लाइन है, लेंथ ऑफ द लाइन, वो तो मेरे को एक्सिस कितना बड़ा लेना है तो उतना लेंथ आप बढ़ा सकते हो। सो दैट इज जस्ट स्केलिंग ऑफ द एक्सिस, सो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट। वो तो आपका जो एक डोमेन होगा जिसके अंदर आप काम कर रहे होगे, जितना आपका एक्स पैरामीटर वेरी हो सकता है। टेम्परेचर है और 10 डिग्री के अंदर वेरी, तो 10 का ही लाइन की लेंथ बनेगी ना, तो मैं आप 100 डिग्री की लाइन नहीं बना सकता, बिकॉज देयर इज अ लिमिटेशन। ओके,
बिकॉज एक्स उतने ही वेरी करेगा, या मैं जैसे आपने बोला था व्हाट डू कॉल इट मनीष, यू वर टॉकिंग अबाउट कि 0.2 में ही मैं वेरी कर सकता हूँ इंजेक्शन प्रेशर, या 0.5 में फिर फ्लैशेस आ जाएंगे। सो एक्चुअली क्या होता है जब हम लोग एकेडमिक पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि लाइन बनाते रहो, एक्सेस बनाते रहो, ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। करेक्ट, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली तो एक्स का एक लिमिटेशन होता है, कोई एक्सेस आप ऐसे अनलिमिटेड नहीं बना सकते। अब आप कितना प्रेशर इंक्रीज कर सकते हो, अगर एक्स को मैं प्रेशर मान लो, क्योंकि ज्यादा करोगे फिर फ्लैशेस आ जाएंगे, फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी, फ्लैशेस आ जाएगा। तो आपके पास ऑलवेज देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ द एक्सेस। सो ऐसे ये अनलिमिटेड लाइन कभी नहीं होती लाइफ में, ठीक है ना। ठीक है, अगर कोई एकेडमिक पढ़ रहा हो ऐसे मैथमेटिकली तो ठीक है, यू कैन थिंक लाइक दिस, बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट लाइक दिस। सपोज सेल और प्रॉफिट का ग्राफ है, इतनी सेल होगी तो इतना प्रॉफिट होगा, क्यों सर? 100 करोड़ की सेल होगी तो इतना प्रॉफिट होगा, 200 करोड़ की सेल होगी तो इतना प्रॉफिट होगा, है सर? सो अगर कोई एकेडमिकली सोचे, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, तो वो तो ये बोलेगा कि सर मेरे को अगर इतना प्रॉफिट चाहिए तो मैं तो इतना सेल करूंगा, तो 10,000 करोड़ की सेल हो। भाई प्लांट की कैपेसिटी भी तो देख लो आप, 10,000 का तो स्केल बनेगा ही नहीं ना आपका, उतने प्रोडक्ट लाइन भी तो होनी चाहिए। सो अभी स्केल जितना है उसी के अंदर रिलेशनशिप देखेंगे हम। Are you getting this point? It's not like mathematics here. So is it okay? So the question you wrote about that parallel line do not intersect, so फिर हमने parallel, so is that point clear now? So is that okay? Yes. So let's move forward. Okay, just a moment. So I think this is the explanation of slope and intercept. So what is the, the question raised is that when I say it should intersect with the line, so it was not the line to line intersection, it is the intersection of the line with the y-axis basically. Just common intercept bola hai. So Itika, is that clear, right? Because that's the question you raised. So now I want to move forward. Okay. So अब मेरे पास दो पैरामीटर आ गए और मुझे क्लियर है इसके अलावा लाइन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। सो मेरे को y और x के बीच रिलेशनशिप लिखना है। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो मैं ऐसे लिख दे दूंगा y इज इक्वल टू mx, स्लोप का x के साथ संबंध है, और c एक इंटरसेप्ट एक वैल्यू पे काटेगा जहाँ x 0 होगा। अगर x 0 कर दूं ये 0 हो जाएगा, y c के बराबर हो जाएगा, तो y c पे काटेगा। सो एक लाइन का एक नॉर्मल लोगों ने क्या एक क्वेश्चन टाइप बना दिया, mx प्लस c ऐसे बोलते रहते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है ax प्लस b बोल सकते हो, आपका चॉइस है सर, कुछ भी बोलो। एक का नाम स्लोप होना चाहिए, एक का नाम इंटरसेप्ट होना चाहिए, x और y के बीच संबंध होना चाहिए। स्लोप एंड इंटरसेप्ट फिक्स हो जाएगा, ये कांस्टेंट बन जाएगा, x और y वेरिएबल रहेगा। तो इज दिस इंटरप्रिटेशन करेक्ट? सो हम लोग लाइन को विजुलाइज करते हैं। अच्छा ये लाइन खींचे कैसे? देखिए पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। जब भी हम प्लॉटिंग करते हैं, हम लाइन कभी प्लॉट नहीं करते। आप लाइन प्लॉट करते हो, पॉइंट्स प्लॉट करते हो, डेटा पॉइंट्स करते हैं। सो ये लाइन कहाँ से आ गई? पहला तो सवाल ये होना चाहिए कि सर एक्स और वाई पॉइंट्स हैं। देखिए ना, आपको प्लॉट करना है तो आप क्या कर सकते हो मैक्सिमम, कि एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, एक्स की वैल्यू ये है, वाई, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, आप पॉइंट्स प्लॉट करो। सो लाइन कहाँ से आ गया? हाउ द लाइन केम व्हेन देयर वाज पॉइंट्स, इसको भी समझ लेते हैं।
बिकॉज लाइन से ही हमें स्लोप का पता चलता है, अंदाजा लगता है कि स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फ्लैट है, क्योंकि हम पॉइंट्स को देख के पैटर्न सोच सकते हैं, बट लाइन डालेंगे तो बेटर है। सो हमारा मिनी टाइम में ऑप्शन होता है कि भाई विद लाइन चाहिए, विदाउट लाइन चाहिए। तो मैं हमेशा क्या सिलेक्ट करता हूँ, स्कैटर प्लॉट विद रिग्रेशन लाइन। मैं लाइन को हमेशा सिलेक्ट करता हूँ। दिस इज माई आइडिया ऑफ सिलेक्टिंग लाइन। वाई? बिकॉज लाइन से एक क्लियर आइडिया मिलता है, बिकॉज वहाँ स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों होते हैं। पॉइंट्स को देख के एकदम से विजुअलाइजेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे आपके एकदम पूरा राउंड से पॉइंट्स आ गए थे स्कैटर्ड, तो आप सोच नहीं पा रहे थे कि लाइन कैसे बनेगी। सो लाइन बनाने का लॉजिक क्या होता है, कोई बता सकता है? फिर हम एक ब्रेक ले लेंगे। इससे मीन का ही पता चलता है ना सर, जो डेटा पॉइंट है वो। तो वो लाइन का Principle- पॉइंट टू लाइन कन्वर्जन कैसे हुआ, अगर ये लॉजिक थोड़ा समझ लेंगे तो फिर वो जो आप मीन और जो बोल रहे हो थोड़ा वो पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। कि इनिशियली हमारे पास पॉइंट्स थे जिसका नाम स्कैटर प्लॉट था, उसके अंदर में लाइन डाल के अपना थोड़ा सा और एनहांस कर दिया इंटरप्रिटेशन को बढ़ाने के लिए हमने लाइन में कन्वर्ट किया। बट लाइन नहीं थी हमारे पास पॉइंट्स ही थे ओरिजिनल। जैसे आपके पास क्या होगा, इतना इंजेक्शन प्रेशर है, इतना कुशन वैल्यू है, इतना इंजेक्शन प्रेशर है, इतना कुशन वैल्यू है। पॉइंट्स ही तो हैं, डेटा पॉइंट्स। लाइन का है इसमें। सो लाइन क्रिएशन कहां से आई सर? मैं फॉर्मूला वगैरह नहीं पूछा, मैं आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड। और लाइन बनेगी तो फिर इसकी इक्वेशन अपने आप आ जाएगी, y इज इक्वल टू mx। वो कंप्यूटर बता ही देगा सर ये लाइन है तो इक्वेशन भी होगी। वो तो बात की बात है, बट लाइन की ओरिजिनेट कैसे हुई है? हाउ, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइन? check the relation में। दैट इज द नीड, आई एग्री। हमारी नीड है कि भाई लाइन भी खींचो तो अच्छा रहेगा, ये तो मैं एग्री करता हूँ। बट वो बनाया कैसे, इसने किस लॉजिक से बनाया? मिनी टैब ने या कोई भी सॉफ्टवेयर ने किस लॉजिक से बनाया? तो लॉजिक पकड़ सकते हैं? सर मुझे जो समझ में आ रहा है इतना ही आ रहा है कि जैसे हम पहले जो मीन की बात जो हम कर रहे थे, करेक्ट। तो इसमें ये दिखा रहा है कि जो डेटा पॉइंट है हमारा मीन से मतलब कितना मतलब नियर है और कितना फार है, ये मत दिखा रहा है डेटा हमारा। जैसे हमारा मान लीजिए 30 या 50 डेटा सेट पॉइंट है, तो जो डेटा है उसका जो मीन वैल्यू है उससे एक एक डेटा जो है मीन से कितना दूर है और कितना नजदीक है, करेक्ट। और ये लाइन क्रिएट करता है। हाँ, तो इसको हम बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, आप यू आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। बेस्ट फिट लाइन क्या मतलब होता है? बेस्ट, हाँ यार, बेस्ट फिट लाइन। बेस्ट फिट लाइन एक कॉन्सेप्ट है कि अगर ऐसा समझ लीजिए, सॉरी आई गॉट सम, वी एक्सेप्ट मिस्टर हरिहर इन मीटिंग, एक मिनट, सॉरी। देखिए अच्छा एडमिट ऑल, यार अभी काफी लोग वेट कर रहे हैं, सॉरी, तो डिस्कशन में ध्यान नहीं गया। लेट मी एडमिट। हो गया सर उनका, मैंने एडमिट कर दिया। ओके, आई हैव डन दैट। ठीक है। सो सॉरी, वी वर वेयर वी वर दैट लाइन। ये जो लाइन का कॉन्सेप्ट वो बेस्ट फिट लाइन कॉन्सेप्ट है। बेस्ट फिट लाइन होता है कि अगर आप इसके अलावा कोई लाइन बनाने की कोशिश करोगे तो जो आपने मीन वाला कॉन्सेप्ट, वो एग्जैक्टली पॉइंट्स के सेंटर में नहीं आएगी, वो पॉइंट से दूर भाग जाएगी, इक्वी डिस्टेंस नहीं हो गया। अगर सब मैं एक लाइन ऐसे बना देता इसी पॉइंट्स पे, तो पॉइंट्स के जो स्प्रेड है, राइट, लेफ्ट और राइट, ऊपर नीचे, वो एक तरफ ज्यादा डेटा पॉइंट आते हैं, एक तरफ कम आते हैं। तो क्या होता है, वो मीन पॉइंट नहीं होते। बेस्ट फिट लाइन होती है जो क्लोजेस्ट टू दी पॉइंट्स है, ऐसी लाइन जहां पे पॉइंट सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो कुछ पॉइंट ज्यादा दूर हो जाएंगे, तो आपको एक ऐसी लाइन ढूंढनी पड़ती है जो पॉइंट से क्लोज है। अब वो कैसे ढूंढता होगा सॉफ्टवेयर बैठ के? वो ऐसे ढूंढता होगा कि लाइन खींची, पॉइंट देखा और उससे पॉइंट है, तो पॉइंट्स का डिफरेंसेस देख लेता होगा, एरर कितना। वो तो कोशिश ये कर रहा है कि सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ जाए। ये थ्योरेटिकल है, आइडियल। ऑल द पॉइंट शुड बी ऑन वन लाइन।
ऐसा होगा नहीं। जहां भी मैं कोशिश करूंगा कुछ पॉइंट्स अवे चले जाएंगे, कुछ क्लोज आ जाएंगे। सो मेरे को एक ऐसा लाइन ढूंढना है कि जहां से पॉइंट, मोस्ट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन हो, बट अगर दूर जा रहे हो तो वो डिस्टेंसेस एरर कम हो। वो लाइन से जो एरर है ना, ये जो एरर है, इसको मैं एरर बोल सकता हूँ। समझ रहे हैं? इसको मैं एरर बोल सकता हूँ। जैसे आई शो यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर। जैसे ये इसका एरर 0 है, क्यों सर? इसका Yes, एरर sir. 0 क्यों है? जो बेस्ट फिट लाइन है उसके ऊपर आ रहा है एग्जैक्टली। सो इसने ये बताया कि जो मेरा एक्स पॉइंट है वही मेरा वाई पॉइंट है, तो जैसे लाइन ने बोला वैसे एक्चुअल पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस पॉइंट को देखो आप, ये एक्स था और ये वाई की वैल्यू थी, बट लाइन क्या कह रहा है कि ये एक्स होगा तो वाई की वैल्यू ये होगी, तो ये एरर नहीं हो गया सर? दिस इज नॉट एरर। से एरर मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? इसमें भी कुछ एरर है, ये कम एरर है, बहुत कम है, बहुत कम है कुछ। सो ऑन एन एवरेज एरर कम करना है आपको, और तो एक लाइन बनाना है आपको, राइट? आपको एरर कम करके लाइन, अगर एरर ज्यादा है, अगर मैं लाइन को स्लोप चेंज कर दूंगा, सो वो पूरे एरर चेंज हो जाएंगे आप, करेक्ट? एग्जाम्पल में अगर लाइन को दूर बना देता या कुछ और तरीके से बना देता, तो ये एरर्स बढ़ जाते हैं इस लाइन के लिए। सर डू यू एग्री टू दिस पॉइंट और नॉट? So what is the best fit line? Error is minimized in the equation. Correct or not? अभी एरर को हम कहाँ देखेंगे, कब देखेंगे? ये स्कैटर प्लॉट की जब हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट टूल पे चलेंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस टूल पे चलेंगे, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके, उससे पहले हम लोग उसको नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। सो अभी इतना समझ लीजिए, एक लाइन हम जरूर बनवा लेते हैं, वो क्लोजर टू द पॉइंट्स होती है। सो दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। So I think let's take a small break, 15 minutes. Okay. So we'll meet at 4:35. So up to here it is fine. And then we'll see certain examples, more examples. Okay, on the interpretation side, right? So let's meet at 4:35 and then again have a discussion on this. So do not disconnect. I just mute my mic and the camera also I stop. So we are discussing this, that there are certain examples where there is an independent relationship between the two parameter x and y. So यहाँ पे साइड 1 में जो डोज किया, साइड 2 में किया, इनका जो आपस में रिलेशनशिप है वो इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप मिल रहा है, मतलब देयर इज नो फिक्स थिंग दैट वी आर गेटिंग आउट। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि कई बार हमें नजर आती है कि एक बहुत बड़ा लाइन बन रहा है और मेन रिलेशनशिप तो यहाँ पे है, लेकिन एक पॉइंट यहाँ क्रिएट होने से ये स्केल इतना बड़ा दिखता है, और जो असली रिलेशनशिप है वो हमें इतना एनलार्ज तरीके से नजर नहीं आता, मैग्नीफाई नहीं हो पाता। अदरवाइज ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, कोई बता सकता है? ये एक्सट्रीम पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? आउटलायर। आउटलायर। तो सिस्टम में कोई आउटलायर पॉइंट आ गया होगा, उससे पूरा ग्राफ डिस्टर्ब हो जाता है, विजुअलाइजेशन सारा चेंज हो जाता है। हमें करना ही चाहिए था कि ये पॉइंट को हटा के हमें एक्चुअली इतनी एक्सेस को देखते, तो ये पूरे एक्सेस को एनलार्ज बनाता था और इसका रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर हमें पता चलता है। और समझाने के लिए इल्यूजन क्रिएट होते हैं हमारे विजुअलाइजेशन में। अगर ये पॉइंट एक यहाँ आ जाता है, इमेजिन करो एक ही पॉइंट है, तो लाइन कैसे दिखाई देती? करेक्ट? सर डू यू एग्री टू दिस पॉइंट?
So do you agree to this कि अगर एक पॉइंट एक्सट्रीम, एक ही पॉइंट एक्सट्रीम है और वो कहीं ऐसे दूर आ गया और ऊपर आ गया, तो हमें कैसे नजर आता है? एक पॉजिटिव स्लोप। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ द पॉइंट तो यहाँ है और यहाँ स्लोप क्या है? कोई पॉजिटिव नहीं है, फ्लैट है। एक पॉइंट के कारण वो एक लाइन को उसको इंक्लाइन बनाना पड़ा, वो हमें दिख रहा है और हम बोलते हैं देयर इज अ गुड रिलेशनशिप। एक्चुअली इट इज नॉट ए गुड रिलेशनशिप। इस पॉइंट को हटाओ, आपका मेन पॉइंट यहाँ है 99% ऑफ द पॉपुलेशन, तब आपका रियल स्लोप नजर आएगा लाइन का। सो कई बार क्या होता है, रियल स्लोप ग्राफ में नजर नहीं आता बिकॉज ऑफ द सर्टेन आउटलायर्स, एक्सट्रीम पॉइंट, या गलत डेटा, या रॉन्ग डेटा फीडिंग, रॉन्ग डेटा कलेक्शन, वन पॉइंट इनकरेक्टली नोटेड, और आउटलायर्स। सो हमें डेटा भी देखना पड़ता है कि डेटा सही करेक्टेड है या नहीं है, बिकॉज इट विल चेंज अवर इंटरप्रिटेशन। सॉरी, अब इस पॉइंट को मैंने देखिए रिमूव कर दिया एग्जाम, ऐसे समझ लो, तो ये ऐसे एनलार्ज नजर आएगा। यू अंडरस्टैंड दिस? अब ये भी जो स्लो, इसका इंटरप्रिटेशन बता सकता है कोई क्या है? पॉजिटिव स्लोप की तरफ जा रहा है, एग्री, बट सिग्निफिकेंट नजर आ रहा है आपको? नहीं सर। नहीं है। सो ये टुवर्ड्स दी फ्लैट स्लोप के करीब है। ओके, जैसे ये जो ये वाली लाइन है इसके करीब आएगी, ठीक है ना? तो ये स्लोप ऐसा नहीं है कि पैटर्न बढ़ता हुआ नजर आएगा, स्कैटर्ड है। जैसे स्कैटर्ड होगा स्लोप फ्लैट होने लग जाएगा। तो सारा खेल क्या है? मैथमेटिक्स का नहीं है कि थोड़ा सा ऊपर गया थीटा तो ये पॉजिटिव हो गया, नीचे गया नेगेटिव। ये तो फिर इट इज ए चाइल्ड गेम, राइट? तो बच्चा भी बता सकता है। बट हमें यहाँ पे क्या देखना है? सिग्निफिकेंट है या नहीं है, सिग्निफिकेंट स्लोप है या नहीं है, इनसिग्निफिकेंट वेरिएशन तो नहीं है। सो इसे इंटरप्रिटेशन बेस्ड होल थिंग। और आप कहोगे कि इसका सर कोई वैल्यू आ जाता है तो हमें और आसान रहता है। सो उसके लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस का वेट कीजिए, इसी को हम वैल्यू कन्वर्जन कर देंगे। सो यू कैन लुक इनटू द वैल्यू एस्पेक्ट ऑफ। So is it clear? क्लियर। So ये जो हमने ग्राफ बनाया था, क्या वेट ऑफ द प्रोडक्ट, ये मैंने लास्ट टाइम ग्लास बॉटल्स का कुछ दिखाया था कि स्ट्रेंथ ऑफ द ग्लास बॉटल, जो कुछ बॉटल्स हैं प्रेशराइज्ड फिल होती हैं। सो वेट और स्ट्रेंथ का कोई संबंध है? सो आंसर आया वेट और स्ट्रेंथ का कोई संबंध नहीं है, थिकनेस और स्ट्रेंथ का संबंध। टोटल वेट थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा तो उसके स्ट्रेंथ से कोई संबंध नहीं होगा। बट अगर कहीं पे थिकनेस थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, चाहे वेट भी प्रॉपर हो, कहीं थिकनेस ज्यादा कहीं कम है, ओवरऑल वेट सेम है बॉटल का, सो आपका जो वीकेस्ट पॉइंट होगा वहां पे आपका ब्रेकेज हो जाएगा। सो इट इज नॉट ट्रू कि वेट कम होने से स्ट्रेंथ कम हो रही है, थिकनेस क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने से कम होगा। तो दैट इज व्हाई द रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट। So I'm telling you why relationship does not exist. ऐसा भी होता है, XY का संबंध नहीं आता, जैसे normal thing, innocent आता है, and sometimes there is a relationship. Okay, so these are the interpretation, and now it's time to look into ये mini tab में ग्राफ कैसे बन सकते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं. So I can just stop the PPT part, sharing of the PPT. And I will pick some file and I will show you how it is to be done on Minitab. So before I show you on Minitab, in the meantime, anyone wants to know interpretation part clear हो गया? क्या दिखता है, क्या ग्राफ आता है, कैसे इंटरप्रिटेशन करना है, क्या मीनिंग है लाइन का, पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेंजर, हाउ इट हैज टू बी डन? ओनली आई हैव टू टेल ये डेटा मिनी टैब में कहाँ पे होता है, कैसे होता है, और उसको क्लिक करके ग्राफ्स को कैसे हमें प्लॉट करना है। लेट मी ओपन सम फाइल। फिर आपको भी कोई फाइल दिखानी है, यू कैन ऑलवेज शो दैट।
Just give me a minute to open the file. Just give me a minute. Sorry. So file is here. What you need to do, so is it visible, this Excel, this Minitab file? Yes, sir. तो इसने क्या किया कि एक लास्ट टाइम एग्जांपल बताया था, ये रियल डेटा है। और देखिए ऐसा नहीं है कि वी कैन ओनली सेलेक्ट मोल्डिंग पैरामीटर, वी कैन सेलेक्ट एनीथिंग। सो फर्स्ट टाइम वी हैव यूटिलाइज्ड दिस फॉर फाइंडिंग द sales problem and marketing problem and forecasting problem. एग्जाम्पल, एक कंपनी फोरकास्ट करती है कि आपकी अगले 3 महीने की सेल क्या होगी, ठीक है ना। सो आपका एक फोरकास्टेड वैल्यू होता है, फिर आपका एक्चुअल सेल भी आता होगा, और ये दोनों मैच नहीं होता, उसको हमने नाम दिया एरर। सो द प्रोजेक्ट वाज कि सर ये फाइल जो हम फोरकास्ट करते हैं उतनी सेल होती नहीं है, हम रिसोर्सेज फोरकास्ट के हिसाब से लगा लेते हैं। सपोज 300 करोड़ का सेल मैंने एक्सपेक्ट किया, 3000 करोड़ का किया हुआ मेरा 2000 करोड़, तो मैंने अपने रिसोर्सेज प्लान तो 3000 करोड़ के हिसाब से कर दिए, तो सेल मेरी कम हुई, सो मेरा प्रॉफिट इफेक्ट हो जाता है, बिकॉज माई इन्वेस्टमेंट इज मोर एंड द प्रॉफिट विल गेट। सो ये कंसर्न है, प्रॉब्लम डेफिनेशन में काउंट हो गया। तो एक जब फर्स्ट मीटिंग हुआ, सो ये डिस्कशन हुआ बेसिकली, ऐसे इंटरेस्टिंग डिस्कशन। हमने कहा ये मार्केटिंग सेल्स वाले आदमी को भी बुला लो और अकाउंट्स फाइनेंस के लोगों को भी बुलाओ मीटिंग में, तो जो आपको लॉसेस होते हैं प्रोडक्टिविटी के वो सब होते हैं, विल डिस्कस विद देम कि कौन सेल फोरकास्ट करता है, कौन सेल्स एक्चुअली, डेटा तो अकाउंट से आता है। अकाउंटेंट ने बता दिया कि देखिए सर ये सेल वैल्यू है, फोरकास्ट वैल्यू है, 11 महीने 10 महीने की हमने आपको दे दिया, और ये एरर्स हैं इनके, ये प्रॉब्लम, सिंपल। अब मार्केटिंग वाला बंदा क्या कह रहा है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। वो कह रहा है सर ये प्रोजेक्ट ही गलत है, व्हाई यू सेलेक्टेड दिस प्रोजेक्ट, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप। वो कह रहा है पूरी दुनिया में सेल इज नेवर इक्वल टू फोरकास्ट। सो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं कहता हूं तो प्रॉब्लम यार इनकी रिसोर्स प्लानिंग खराब हो जाती है। कह रहे हो ठीक है, एग्री टू देयर कंसर्न, का कंसर्न भी जेन्युइन है, बट ये प्रोजेक्ट आप क्या लेना चाह रहे हो, सेल विल नेवर बी इक्वल टू फोरकास्ट, फोरकास्ट इज फोरकास्ट, व्हाई यू वांट टू मेक सेल इक्वल टू फोरकास्ट। So now I could understand कि ये प्रॉब्लम डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए, that y is equal to x। सर ये हमारी डेफिनेशन थोड़ी ना है। तो मैंने मार्केटिंग वाले को ये बताया है कि सर आप गलत समझ रहे हो, हमारा प्रॉब्लम डेफिनेशन y को x के बराबर लाना नहीं होता, y is equal to x करना नहीं होता। हमारे लिए x और y का संबंध क्या है, फोरकास्ट और सेल के बीच आपस में रिलेशनशिप तो होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, तो रिलेट तो होना चाहिए। जैसे मोल्डिंग की वैल्यू, इंजेक्शन प्रेशर कैन नेवर बी इक्वल टू कुशन वैल्यू, तो दोनों अलग पैरामीटर है। यस। लेकिन इन दोनों का आपस में कुछ संबंध तो, मैं कहा अगर फोरकास्ट और सेल का संबंध नहीं है फिर तो आपका क्वेश्चनेबल है, इसका मतलब फोरकास्टिंग मॉडल आपका खराब है। कह रहा हाँ ये पॉइंट वैलिड है आपका, तो मैं कहा फिर ये प्रोजेक्ट ले लेते हैं, दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोरकास्ट एंड सेल, कि है या नहीं है, और मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। सो हमें करना क्या था, कुछ नहीं करना था सर, हमें तो वो स्कैटर कोरिलेशन रिग्रेशन ढूंढना था, मतलब बेसिकली स्कैटर लेवल पे भी रिग्रेशन कोरिलेशन, वो जब न्यूमेरिकल वैल्यूज पे जाएंगे देन वी कैन स्पीक। सो हाउ डज टू बी डन, सिंपल करना है हमें। अब मिनीटैब कमांड्स देख लीजिए,
आपको ये पता होना चाहिए इसमें y कौन है और x कौन है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो x कौन है और y कौन है इसमें। सेल्स हमारा जो फिर वाई हो जाएगा। सेल विल बी वाई, फोरकास्ट विल बी एक्स। एग्जैक्टली। सो इसका सिंपल आंसर है जो इनपुट है वो पहले आता है, आउटपुट बाद में जनरेट होता है, ठीक है ना। तो मैं देखा कुछ लोगों ने वो फोरकास्ट को वाई बना के डाल दिया, ऐसे मैथमेटिकली चल रहे हैं, डोंट गो मैथमेटिक्स हियर, ओके। तो अब आपको क्या करना है, पहले तो आप ग्राफ में जाओ और स्कैटर प्लॉट सबसे पहला ग्राफ है, इसको क्लिक कर दो। और ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं, एक ये वाला ऑप्शन आएगा आपके पास, कैन यू सी दिस, ये ऑप्शन आपको नजर आएगा, scatter with line. So I like this option. Why I already explained you. ठीक है ना। So आप ये कर लेंगे select. So आप इसको select कर। अब ये पूछेगा आपका y वेरिएबल क्या है और x वेरिएबल क्या है। So बहुत सिंपल है, मेरे पास y मेरा सेल है, x मेरा फोरकास्ट। और भी कोई रिलेशनशिप है x1, x2, x3, x5, जैसे इनका मोल्डिंग का था, कुशन का संबंध इंजेक्शन प्रेशर से भी, इंजेक्शन टाइम से भी हो सकता है, x1, x2, x3 हो सकता है। तो एक साथ ही बहुत सारे रिलेशनशिप बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, एक बार ही आप कमांड दे सकते हो, मल्टीपल ग्राफ बन के आ जाएगा। ग्राफ अलग अलग ही बनेगा, एक ही ग्राफ के अंदर नहीं आएगा, बट आपको बार बार कमांड देने की जरूरत नहीं, इसलिए इसने बहुत सारे एक साथ रोज दे दिए। बट यहाँ पे मुझे एक ही रिलेशनशिप चेक करना है, सो आई पुट 1y 1x। ओके जी, ओके कर। सो क्या आपका क्या कहना है, व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन? पॉजिटिव रिलेशन। Sir mentioned positive. रिलेशन इज देयर एंड देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। अब ये स्लोप को कह सकते हैं स्लोप है। अब अगर लाइन ऐसे आती, डेफिनेटली एक मिनट जस्ट लेट मी टेक द मार्कर, लाइन ऐसे आती, ठीक है, डेफिनेटली कुछ तो थोड़ा तो एंगल बन रहा है थीटा, बट ये क्या है, ऑलमोस्ट डेड स्लोप है। Here the slope is visible. Points are, ये points पे ऊपर डाला है, ये एरर पॉइंट्स हैं मेरे, सॉरी करेक्ट एरर, ये एरर पॉइंट्स हैं। तो उसने लाइन अपने आप बेस्ट जो बना सकता बना, इसको इधर उधर करेगा तो एरर बढ़ जाएगा। सो उसका ये है कि ये मेरा बेस्ट फिट लाइन है। और इससे होगा क्या, फ्यूचर में होगा क्या, क्या अगर मैं प्रिडिक्ट करूंगा तो मेरी कितनी सेल होने चाहिए, ये पता चल जाता है फ्यूचर। सर देखिए, रिलेशनशिप ढूंढने का फायदा क्या है, सिग्निफिकेंट फैक्टर का फायदा क्या है कि x कितना रखें तो y कितना मिलेगा, इसीलिए तो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना, जो आगे DOE में कहीं भी काम आएगा। एनालिसिस के बाद फिर हमारा फेज इंप्रूवमेंट या डायरेक्टली करेक्ट, विच इज द डिजाइन एक्सपेरिमेंट फेज। सो इसलिए हमारे को ये रिलेशनशिप ढूंढना बहुत जरूरी है, देयर हैज टू बी सम रिलेशनशिप। और यहाँ पे मुझे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, सो इट्स अ गुड साइन, ठीक है। इक्वल नहीं कह रहे हम, बट हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और इसकी कुछ इक्वेशन भी हम लोग आगे बना सकते हैं, ठीक है ना सर। तो अगर इतना सेल होगा तो इतना फोकस, इतना होगा तो सेल इतना होगा। सो दैट्स व्हाट दे हैव डन। सो ऐसे हमने बहुत सारे कंपनीज में देन वी रियलाइज कि हम तो ये लोग इंपोर्ट स्किल प्लानिंग में करते हैं कि इतना किट हमने मंगवाना है, इतना फोरकास्टेड है, 3 महीने पहले ऑर्डर दे दिया, तो वहां तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका ये सब देखना। So then we identified in one company certain projects related to that only. I don't know अगर वही है या नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। स्टेरिंग कंपनी थी जेटेक, उसके साथ किया था हमने। So I close this file, open another file.
So maybe I have to do what? I have to stop the sharing and share again, new file. So I think this is visible now, the new file. Yes, sir. अब यहाँ पे भी ना कुछ फोरकास्ट, दो तरीके का फोरकास्ट थे इनके पास। एक होता है लॉन्ग टर्म फोरकास्ट, राइट? जैसे मैंने आपको एक साल पहले ही बता दिया कि मैं हर साल हर महीने कितना कितना किट प्लानिंग करूंगा, आप इंपोर्ट के आप पूरा ऑर्डर दे दो, 3-3 महीने का ऑर्डर पहले रिलीज कर दो। फिर जब वो महीना क्लोज आ जाएगा तो फिर मैं अगले मंथ का फिर एक जनरेट करूंगा फोरकास्ट की ये है। एक तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी मटेरियल प्लानिंग के लिए, फिर एक जो नॉर्मल फोरकास्ट हम रिलीज करते हैं 2-2, 3-3 महीने का, और फिर एक एक्चुअल सेल होती। तो उन्होंने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या मेरा इंपोर्ट प्लानिंग तो गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि इंपोर्ट प्लानिंग तो लॉन्ग टर्म फोरकास्ट के बेसिस पे है और जो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट्स है वो शॉर्ट टर्म फोरकास्ट के बेसिस पे, और सेल है। ये तो हम लोग ये पता कर लेते हैं किसमें कितना एरर है। सर ये पॉइंट समझ आ रहा है? मतलब देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट इन वन कंपनी। वन इज इंपोर्ट बिकॉज से हाई लीड टाइम ड्रिवन, तो मुझे पूरा साल का चाहिए होता है कि आप किट प्लानिंग बता दो, साल का कितना है आपका, कितने कितने मटेरियल उठाओगे। तो अगेन फोरकास्ट है, सेल नहीं है वो। और एक दो नॉर्मल आती है कंपनी में, 2-2, 3-3 महीने के बता देते हैं कि आज का शेड्यूल है, अगले 2 महीने का ये हो सकता है, फिर नेक्स्ट है तो वो नॉर्मल जो आपका फोरकास्टिंग होता है फॉर डोमेस्टिक सप्लाईज। बट इंपोर्ट का प्लानिंग हो चुका है। अब 2 कंडीशन हो सकती है, अगर ये फोरकास्ट एरर ज्यादा है या कुछ इशू है तो क्या कंडीशन हो सकता है? या तो आपका मटेरियल स्टॉक आउट हो जाएगा। मैंने बोला 3-3 हजार हर महीने चाहिए, वो लास्ट में बदला 10,000 हो गया, तो आपका स्टॉक आउट हो जाएगा। तो स्टॉक आउट में क्या करना पड़ेगा सर? आपको पता है अगले महीने खत्म होने वाला है। इश्यू क्या आएगा इसमें? अभी प्रॉब्लम डेफिनेशन समझ रहा हूँ, फिर हम लोग एनालाइज करेंगे टोन पर। अगर कंजम्पशन या सॉरी डिमांड बढ़ जाती है 3,000 का 10,000 हो जाता है, 3,000 10,000, तो इशू क्या आएगा? शॉर्टेज होगा सर इन्वेंट्री का भी, इन्वेंट्री शॉर्ट में भी सप्लाई हो शॉर्टेज जाएंगे सर। शॉर्ट सप्लाई। तो प्रोक्योरमेंट वाला करेगा क्या? अभी भी प्रॉब्लम डेफिनेशन नहीं आई, असली प्रॉब्लम कहाँ आ रही होगी? लाइन थोड़ी ना रोकेगा। फोरकास्टिंग में नहीं, वो पता क्या करेगा, एयर फ्रेट करवा लेगा जो सी से आ रहा है ना, दैट विल बी एयरलिफ्ट। हाँ एयर लिफ्ट कर लेगा, तो आपका प्रीमियम फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाएगा उसका। तो प्रोजेक्ट पता क्या आएगा, वो प्रीमियम फ्रेट कॉस्ट हमारी बहुत लाखों में जा रही है। ये प्रॉब्लम डेफिनेशन से शुरू होगा, बट पीछे एनालाइज क्या करना है, टेक्निकल डेप्थ बाई क्या है वो कुछ और है, बट वो जो पेन एरिया लेके आए वो कुछ और लेके आते हैं, ठीक है ना। और अगर आपका सपोज 10,000 का फोरकास्ट दिया था, हो गया 3,000, तो कौन सी प्रॉब्लम लेके आएगा वो? यस, इन्वेंट्री सर हमारे पास 13 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। अब कैसे बिल्ड हुई है कोई नहीं जानता, ऐसे ही कुछ हुआ होगा। फिर हम बोलेंगे इंपोर्ट को अलग करो, डोमेस्टिक को अलग करो, तो इंपोर्ट की भी इतनी पड़ी हुई है सर। अच्छा इंपोर्ट की क्यों है? हमने जो ऑर्डर करा है वो उतना फोरकास्ट नहीं था। तो बेसिकली इशू यहीं आके फंस रहा है, सेल फोरकास्ट वाला। तो हमने बोला भाई बता दो लॉन्ग टर्म फोरकास्ट क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, ऐसे फिर अगले कुछ का। तो दे वर डिफरेंट मॉडल्स एंड ऑल। तो मैं आपको सिर्फ क्लिक बता रहा हूँ, ये तो मैं ऐसे बैकग्राउंड से बता रहा हूँ, तो ताकि वो डेटा को क्लिक करने में आपको थोड़ा सा एक इंटरेस्ट भी रहेगी, ऐसे नहीं इसलिए मैकेनिकली क्लिकिंग दी पॉइंट्स। तो क्या करना है वही करना है सर, स्कैटर ग्राफ में जाओ, स्कैटर प्लॉट में जाओ, विद रिग्रेशन सेलेक्ट करो लाइन के साथ, y को y मानो, सेल मतलब जो भी है, x को इनपुट फोरकास्ट, और मेरे को एक ये स्लोप। तो स्लोप आपको समझ आ रहा है कितना मिल रहा है आपको। अब मैं एक दूसरा भी सिलेक्ट करता हूँ, सेल तो सेल ही रहेगी, और फोरकास्ट ये वाला सिलेक्ट।
जो मारुति ने लॉन्ग टर्म दिया, सॉरी जो मारुति ने दिया इमीडिएटली। सो आप देखिए इस दोनों के स्लोप में फर्क है कुछ, ये थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है, ये स्लोप में जा रहा है, ये पॉइंट स्कैटर्ड है, ये पॉइंट थोड़ा पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इसका जो लॉन्ग टर्म फोरकास्ट है उसका कुछ भरोसा नहीं है, उस हिसाब से कभी सेल के आसपास भी नहीं है वो, आसपास मतलब उसमें एरर वेरिएबल है। सो मेरी इंपोर्ट प्लानिंग डिस्टर्ब होगी उसके हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि वो उतना एक्यूरेट नहीं है। ये शायद फिर इन्होंने किसी the same numbers, some different numbers, अगर different model का होगा। और देखो short term this is quite good दूसरे मॉडल का, और long term let's see that also। so यहाँ एक और चीज समझ आ रही है कि मॉडल स्पेसिफिक भी इनको प्रॉब्लम है। जैसे अलग अलग किट मॉडल है, सपोज ऐसा समझ लीजिए वेरिएंट आपके एसक्यूज वेरिएंट्स कुछ तो बोलते हो गए ना, Yes sir, SQL. एंड एसक्यूज। जैसे कि एक पर्टिकुलर मॉडल के लिए तो मेरा एरर ज्यादा है, बट दूसरे मॉडल का जो फोरकास्टिंग वो ठीक है। जैसे स्विफ्ट कार का होगा तो वो काफी रिलायबल होगा कि इतना ही मंगाना है इतना है, बट अगर कोई नया कार लॉन्च हुआ या जो भी सियाज का है वो कभी ऊपर नीचे बढ़ता रहता होगा। सो ऐसा नहीं है कि पूरा कंपनी का फोरकास्टिंग खराब हो जाता है, ऐसा नहीं है। हम लोग नैरो डाउन अप्रोच से चलते हैं ना सर, यू नो दैट हाउ वी वर्क ऑन सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट, वी फॉलो ए नैरो अप्रोच। सो दैट इज द अप्रोच वी नॉर्मली फॉलो। सो ये क्लिक करने हैं आपको, ग्राफ बनाना है, और स्कैटर्ड डेटा होगा तो स्कैटर्ड आ जाएगा, उसमें कोई रिलेशनशिप आएगा नहीं, एंड सो ऑन। और मैंने डीजी सेट का भी हमने एक बार किया था, डीजी का डेटा है तो आई कैन शो यू। जैसे डीजी सेट का डेटा था, then we close the program, okay, already 5 o'clock से ऊपर हो गया। So just a moment, let me show one more example। and next time we'll move to the numerical one। अच्छा आपको ये विजिबल नहीं होगा ना, मुझे आपको विजिबल कराना पड़ेगा जस्ट। ओके स्टॉप शेयरिंग, लेट्स गो टू द न्यू फाइल। तो आपको ये फाइल विजिबल है नाउ, ओके। सो अब ये क्या है, इसमें रनिंग आवर्स और यूनिट जनरेटेड है। इशू क्या था मैं ये बता देता हूँ, डीजल कंजम्पशन इशू था सर। वही फैक्ट्री है, वही प्लानिंग है, मंडे ट्यूसडे कभी डीजल ज्यादा कंज्यूम हो गया कभी कम हो गया। इसका मतलब क्या है, आपने जो ज्यादा घंटे डीजी चला लिया है उतना ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि जितनी बिजली नहीं आई उतना तो आपको फिर चलाना पड़ेगा डीजी सेट। सो आपको तो एफिशिएंसी निकालनी है कि भाई जितना यूनिट आपने जनरेट उतना कंज्यूम भी किया नहीं किया आपने। डीजी ज्यादा चला लिया, मशीनें 2 चलाई, लोड ही रखा नहीं आपने ढंग से। सो हमें एक रिलेशनशिप चाहिए कि कितने घंटे चलने में कितना यूनिट हमारा जनरेट हुआ था, और उस हिसाब से उतना डीजल कंजम्पशन होना चाहिए, और मेरा एक्चुअल डीजल कितना कंज्यूम हुआ। सो आई कैन कैलकुलेट लाइक दैट। सो लॉजिक हो, ये स्कैटर प्लॉट पे जाओ, रिग्रेशन पे जाओ, ओके करो, और मैं भी इसको डिलीट कर देता हूँ। सर वाई क्या लेना है? Running hours. डीजल ले सकते हैं, डीजल। नहीं, पहले तो C1 और C3 के डिस्कशन हो रहा है, डीजल तो रनिंग आवर्स से डायरेक्टली कोरिलेटेड। तो C3 ले सकते C3 के अंदर बताओ। हैं। C3 Then unit. C3 है या प्लीज C3 वाई होगा। एग्जैक्टली, यूनिट जो आउटपुट है मेरा और कितने घंटे चलाया वो इनपुट है। सर क्लियर है ना? क्लियर। सर एक्स पहले आएगा वाई बाद में आएगा, सिंपल लॉजिक पकड़ो। तो ये रिलेशनशिप है।
अच्छा, डीजल कंजम्पशन और रनिंग आवर्स का तो बहुत ही क्लियर, जितना ज्यादा घंटे चलाओगे उतना डीजल कंज्यूम होगा। आई थिंक तो डायरेक्ट रिलेशनशिप आना ही चाहिए। व्हाट डू यू से? मुझे याद नहीं है, इसको देखना पड़ेगा। सो एक मिनट, ये इसके बीच नहीं, यूनिट जनरेटेड है, सॉरी। रनिंग आवर्स एंड डीजल, बड़ा एक बट इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप आ रहा था, डीजल वर्सेस यूनिट, है ना सर? वाई एंड एक्स, लेट्स फाइंड आउट दिस। अब ये उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं आ रहा, स्कैटर्ड लाइंस है, क्लोजर टू पॉइंट्स नहीं है। और यही प्रॉब्लम है उनकी, डीजल कभी ज्यादा भी कंज्यूम हो रहा है, कभी कम भी कंज्यूम हो रहा है, यूनिट जितनी जनरेट होनी है कंज्यूम नहीं हो रही, क्योंकि लोड उतना नहीं लगाया आपने। तो वो सारे इश्यूज हैं यहाँ पे। सो वी हैव टू फाइंड दैट, वी कैन फाइंड द, वी कैन डू विद एनीथिंग। ये हमने एनर्जी सेविंग का प्रोजेक्ट लिया था, कहीं पे वी कैन वर्क ऑन सेल फोरकास्ट, समटाइम प्रीमियम फ्रेट, डीजल कंजम्पशन, एनर्जी कॉस्ट, सम केस मोल्डिंग मशीन। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन दी क्या प्रोजेक्ट है आपका, बट कॉन्सेप्ट क्या है। स्कैटर प्लॉट पे जाओ, वाई एक्स रिलेशनशिप निकालो, दोनों वेरिएबल है, डेटा डालो, चार्ट को इंटरप्रेट करो, फिर उसी को आगे न्यूमेरिकल में हम लोग कन्वर्ट करें, राइट? सो आई स्टॉप इट हियर। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? एंड विद दिस स्कैटर प्लॉट विद रिग्रेशन लाइन इज क्लियर। अभी इक्वेशन और न्यूमेरिकल वैल्यूज को सिर्फ आप होल्ड कर लीजिए, बिकॉज दैट विल बी अवर नेक्स्ट analysis. So graphically we are covered with, whatever we wanted to cover, we have already covered. So मैं लिस्ट बता देता हूँ, X bar R चार्ट, IMR चार्ट, रन चार्ट, नॉर्मलिटी टेस्ट, ये सब ग्राफिकल टूल हैं। 4 ही हो गए। मेन इफेक्ट प्लॉट 5, इंट्रैक्शन इफेक्ट प्लॉट 6, मल्टीवेरी चार्ट 7, राइट? बॉक्स प्लॉट 8, CI प्लॉट 9, स्कैटर प्लॉट रिग्रेशन 10। तो ऐसे 8-10 आपके पास ग्राफ हैं जो आप यूज कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में। तो आर यू ओके विद दिस? सो हम ग्राफिकल की जर्नी को यहीं पे ब्रेक करेंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल में एंटर कर जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, पार्ट ऑफ एनालिसिस फेज ही है। उसी डेटा को न्यूमेरिकली देखेंगे जिस डेटा को ग्राफिकली देखें। So that would be our next target to do it. But in between, before I close the program, सर प्रोजेक्ट्स के लिए जिन लोगों ने प्रोजेक्ट्स अभी डिस्कस नहीं किए हैं, those person team, those who have not discussed that, please take your time and say कि हमने यहाँ तक कर लिया है, please, and then can share the data with me. Once I see on mail, I can schedule a meeting with you and review it again. So is it fine? So I could see good progress of the lean wala, ek jo productivity wala project, I can see it's a good progress. Second, on the project on the molding, which is jo humne jo cut lag raha tha, so DM water se start kiya, and then we move into the parameters of the machine and so on after the process mapping. So ye do project humne abhi, I can see they are progressing. Other projects like on the tool life, shaft ka jo run out variation hai. There are other projects also, logistics का था, so वो भी काफी progress पे था. So I don't know what is being done on that. So maybe we can have in between one session of project review, maybe 1 hour, 2. We'll keep short sessions, okay? We'll not keep very long sessions so that we can have more frequent interaction than one day talking 4 hours, 5 hours. So इसलिए हमने time reduce कर दिया ताकि हम frequently करें, 2 times a week कर लें, 3 times a week कर लें, maximum 2 times say, let's take it. And that would be better than doing 1 time in a week and doing for 3 or 4 hours. So is that strategy fine with you? So increase frequency, reduce time. Is it okay?
So that was related to project reviews and also let's close the session. Any question from your side? Shall we close now? So आप लोग practice कर लीजिए that all these charts you should be comfortable on how you can click on mini tab. Can you interpret the chart? किसी को भी problem है next session में please ask that question. And mini tab of access है कुछ team के पास? Can you do that? मतलब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, सब लोगों को मौका मिल पा रहा है कुछ मिनी टैब को यूज करके डेटा को एनालाइज करने के लिए, या कुछ 2-4 लोग ही यूज कर रहे हैं, तो बाकी टीम इज जस्ट सपोर्टिंग इट और दे आर आल्सो डूइंग इट और दे आर आल्सो गेटिंग एक्सपोज्ड. ओके, आइडिया है कि अगर आपको if you lag behind ना always tell me, then I can again tell you that it has to be done in just or 2-3 minutes. आपको मालूम है टूल को यूज करना मेरे लिए 1 minute 60 second जॉब है, कोई भी टूल है, I can click and do it. So explanation takes time. So अगर किसी को बताना है टूल कहाँ से है, this is hardly a matter of 1 minute. Okay, so explanation is taking time. Interpretation, explanation, data collection, understanding how to do it. Minitab software is just a click, so it's not a big deal. Okay, so thanks a lot. Let's close this chapter here, and Thank you, sir. we'll have one schedule again. Maybe I will tell you when. I will coordinate with the team. Okay, team members, can you send me a mail for मतलब project जैसे आपने last time किया था, project का detail, उनके नंबर, टीम मेंबर्स के मेल आईडीज, ताकि मैं जो इंडिविजुअल ग्रुप को भेजूं. अभी क्या ट्रेनिंग इज फाइन, बट इंडिविजुअली फॉर प्रोजेक्ट रिव्यू आई नीड ग्रुप डिटेल कि ये टीम में ये लोग हैं और ये प्रोजेक्ट इस नाम से. सो आई विल से प्रोजेक्ट 1 आई विल रिव्यू फ्रॉम 2 to 3 PM or 2 to 2:45 PM. So only those people can devote time, but it does not mean other people cannot come. That is their volunteer. They can see that how project is reviewed, what they are doing. But अगर किसी को दिक्कत है तो एटलीस्ट everybody gets time to review their own project. So I can allocate a specific time schedule for them. So not an issue at all, right? Okay, sir. Thanks a lot. Please take care. Thank you, sir. Okay, thank you, dear. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, Arya. Thank you. Thanks, everyone.